again. I'm with you, Dr. Renu, Assistant Professor, TIMIT TMU, and today we are going to cover our next topic about ethics, the application of ethics in business. In our last video, we had to the differentiate between the ethics and the values. We knew this thing that ethics are applicable in the professional life, and the values which we implement, which we follow in our personal life. Okay, so today we are going to discuss about some more basics about ethics, code of conduct of ethics, or we can say that code of ethics. Okay, so let's start with the introduction of ethics. The word ethics derived from the Latin word that is ethos, which means way of living. Ethics is a branch of philosophy that is concerned with human conduct or human behavior. Okay, it consists in a code of conduct. Code of conduct means it consists of rules and regulations of human being to live in the society, living in the society. इस सोसाइटी में अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको रहना है, तो कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा? और we can say that code of ethics को हमें फॉलो करना है to survive, to live in the society. Okay? Ethic is an attempt to guide human conduct, and it is also an attempt to help men in leading good life by applying moral principles. Okay? जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, अगर वो कोई भी इंडिविजुअल बेसिक अपनी लाइफ में अप्लाई करता है उनको, सो ऑब्वियसली ही और शी विल लीड अ गुड लाइफ. ओके, एथिक्स refers to well-based standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do, usually in the terms of right, obligation, benefit to the society, fairness, and specific virtue. Okay, ethic is related to issue of prosperity, rightness, and wrongness. Okay, so now comes to the definition of ethics. According to the McKinsey, defines that ethics is the study of what is right or good in human conduct involved in human life. So it is clear that ethics is the study of which determines right and wrongness of actions. Means जो हम act कर रहे हैं, जो हम action कर रहे हैं, that is right or wrong in our professional life. और हम जब सोसाइटी के सामने अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन के सामने अपने परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्शन है दैट इज राइट और रॉन्ग. ओके, कई बार जब आप सपोज कि घर में गेस्ट आते हैं और बच्चे गलत तरह बिहेवियर करते हैं या उनके सामने कोई चीज़ रखी है खाने की, बार बार आकर उसको उठा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि बच्चे को एथिक्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है. ओके, नाउ वी कम टू द अदर डेफिनेशन. अनदर डेफिनेशन Wheelwright in 1959 says that ethics is that branch of philosophy which is a systematic study of reflective choice of the standard of right and wrong by which it is to be guided and of the goods towards which it may be ultimately directed. Okay, now we had go through these terms a number of times. So now what the meaning of ethics सबको पता होगा obviously. जब हमने इतना सारा कंटेंट और वैल्यूज के बारे में हमने कवर कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड वैल्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द डीप इन दिस टॉपिक, लेट्स go through the meaning of ethics one more time. Okay, ethic is simply the motion of knowing right from wrong. Ethic is often used interchangeably with moral. Consider किया जाता है moral, ethics and values को, but all the three concepts are totally different. Okay, and ethics provide us the tools to determine whether or not we should do a certain actions, that the extent to which a past action should have been done. Okay, ethics हमें जो हमारा certain हमारे actions होते हैं उनके बारे में हमें क्या करता है, गाइड करता है. ओके, कि वो पर्टिकुलर एक्शन हमें करना चाहिए, पर्टिकुलर एक्ट हमें करना चाहिए या नहीं, क्या वो एक्ट जो हम कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग.
After that, nature of ethics. Ethics is a systematic knowledge. Systematic knowledge, ethics को हम science बोलते हैं. Ethics is a science. Every science is concerned with a particular sphere of nature. As a science, ethics, it has all particular sphere. Ethics को consider किया गया as a science, क्योंकि science में भी कोई particular prefixed formulas होते हैं, prefixed प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करने से ही आपको क्या मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है. सेम वे एथिक्स में भी कुछ प्रीफिक्स्ड कोड ऑफ एथिक्स वी कैन से, जिसको फॉलो करने से आपको लास्ट में रिजल्ट मिलता है. दैट माइट बी रॉन्ग और राइट रिजल्ट जो भी आपने चूज किया है. ओके, इट डील्स विद सर्टेन जजमेंट दैट वी मेक अबाउट ह्यूमन कंडक्ट. It deals with systematic explanation of rightness or wrongness in the light of the highest good of men. Systematic explanation means अगर कोई particular चीज right है तो वो क्यों right है. Okay? अगर हम बोल रहे हैं कि ये काम गलत है तो what is the reason behind that? We are saying that this deeds are wrong. Okay? Ethics is not an art. जब obviously ethics science हो गई तो ये arts नहीं है, कंसिडर करेंगे. Ethics depend on the result. So arts depend on the result. रिजल्ट में क्या है, अगर सपोज कीजिए किसी कोई इंडिविजुअल है, किसी ने स्टार्टिंग करा कोई पेंटिंग ड्रॉ करना, तो स्टार्टिंग जब करी उसने इनिशियली जब किया तभी आप उसको क्या करेंगे, फाइनलाइज नहीं कर सकते कि हाँ इसने ये चीज़ बनाई है. जब वो उस चीज़ को फाइनल कर देता है, ठीक है, फाइनल फॉर्मेशन कर देता है, फॉर्म दे देता है, तभी आप बोलोगे हाँ ये अच्छी पेंटिंग है. इनिशियली स्टेज में तो नहीं बोल सकते ना. सो आर्ट्स डिपेंड ऑन द रिजल्ट while ethics is based on the motive. In the other words of Mackenzie, in arts the ultimate appeal is to work achieved. Arts में ultimate जो result जो हमें मिले, result जो achieve हुए हैं उन पे focus किया जाता है. Where in ethics the ultimate appeal is to the inner harmony. Art specially deals with acquisition of skills to produce object. आर्ट्स में क्या है, हमारे पास स्किल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने का. ओके, सो एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम आर्ट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ गुडनेस विच रियली इंट्रिंसिक एक्ट. नाउ एथिक इज अ नॉर्मेटिव साइंस. Normative science, why we say that ethics is a normative science, because there is some prefixed rules and all human beings have to follow that prefixed rules to survive in the society. Okay, so it's mainly concerned with what ought to be done rather than what is the case. Okay, it's different from positive science. A positive science is concerned with facts and explanations them by their cause, but ethics deal with the values. Okay, देखिए कंसेप्ट जो है एथिक्स का, वैल्यूज का, मॉरल का, वो डिफरेंट है, बट सारे के सारे क्या इंटरकनेक्ट हैं. एथिक्स जब आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होंगी तभी आपके जो एथिक्स हैं ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मॉरल पे. इट इवैल्यूएट सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड और नॉर्म्स बाय व्हिच वी कैन जज ह्यूमंस एक्शन टू बी राइट और रॉन्ग. लॉजिक एंड एथिस्टिक आर आल्सो कंसीडर्ड एज नॉर्मेटिव science. After that, ethics is not a practical science. Ethics is not a practical science. It only guides to achieve a specific goal. Okay, कोई आपका particular goal है, उसको आपने किस तरह से achieve करना है, ये right way है उस particular goal को achieve करने का, ये गलत है कि उस particular goal को achieve करने का. Okay, it was not like practical science, which just means for the realization of an end or item. Okay, for example, the medical science is a mean to remove the cause of disease. Okay, जो medical science है उसका जो main purpose है क्या है, कोई cause है, अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो उसको disease को, उस cause को remove करना है, उस disease के cause को remove करना है. Okay, so ethics try to see what is ultimate goal of the life and how this goal can be achieved by the individual, by the person. Now scope of ethics. Ethics कहाँ applicable हो सकता है?
मोस्टली हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में एथिक्स किस तरह से अप्लाई हो सकता है। ओके, स्कोप ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं एथिक्स को। ओके, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ भी हम एथिकली अपने एथिक्स को कंसीडर करके, क्योंकि एथिक्स बेसिकली क्या सिखाते हैं आपको, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो यू हैव टू differentiate between the right and the wrong. It is one of the important field of study in modern times, and without morality, no human institution can progress. Ethics is a study of those cherished ideals and values which is vital for the growth, development, and progress of the human society. Okay, it is a matter of regret that people have forgotten the higher values of life. Okay, आज की भाग दौड़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सुपीरियर दिखने के लिए जो बेसिक वैल्यूज थी, मोस्टली आज के टाइम में जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, भूल रहे हैं। उनको सिर्फ ये कि हाँ मुझे एक दूसरे से बेटर करना है, बट बेटर करने के लिए, अच्छा अचीव करने के लिए वो कौन सा रास्ता यूज कर रहे हैं, कौन सा पाथ ऑप्ट कर रहे हैं, वो राइट है, रॉन्ग है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। ओके, The materialization of values has lowered down the moral of human society. Materialization, ठीक है, जितना इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है मेटरलिस्टिक हो रहा है, ओके, तो वहीं साइड बाय साइड वो एथिक्स को, मोरल को साइड करता है। ओके, सो द स्कोप ऑफ एथिक्स इज वाइड विच इज मेनली कंसर्न विद द प्रिंसिपल। कौन कौन से एक्शंस हम कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज बट ऑब्लिगेशन इज कॉमन टू ऑल। कौन सी ऑब्लिगेशंस है जो हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है, आपको किसी से ऊंचे में आवाज बात नहीं करनी है, ठीक है, आपको अब्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, तो ये भी कहाँ है, एथिक्स है ना आपका, ठीक है, तो वो एथिक्स सब पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज गुड इन ऑल गुड एक्ट्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें डिफरेंशिएट करना। ओके, द सेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हर इंडिविजुअल की ड्यूटीज हैं, बट apart from duties, he or she is having some responsibility toward their society, toward their parents. Okay, तो वो भी आप ethics में आएगा, individual and the society में। After that, let's discuss the scope in brief. Okay, first one is moral sphere. Moral sphere में किस तरह से ethics implement है? तो first one is personal conduct. Personal conduct में moral guide individual behavior, helping distinguish between right and wrong from bad in personal action and decisions. Okay, character development, किसी भी इंडिविजुअल का जो character है, characteristics है किसी भी इंडिविजुअल के, either he is honest, integrity, compassion, hard working, that is all depend on their ethics. Okay, interpersonal relationship address how individual should treat others. Interpersonal relationship में कि हमें दूसरे के साथ किस तरह से behave करना चाहिए। Okay, respect, kindness and fairness, आप दूसरों की respect करेंगे जो भी आपकी सोसाइटी में, because all the human beings are the part of the society. आप सोसाइटी में अकेले नहीं हैं, आप पार्ट हैं सोसाइटी का, तो सोसाइटी में जो और लोग हैं उनके साथ आपको रिस्पेक्टिवली बिहेव करना है, काइंडली बिहेव करना है, फेयरली बिहेव करना है, ठीक है। आफ्टर दैट सोशल स्फीयर में कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मोरल इन्फ्लुएंस, सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, शेपिंग व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन कम्युनिटी। ओके, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है किसमें, कम्युनिटी में। आप जब 10 लोगों के सामने खड़े हो तो किस तरह से आपको बिहेव करना है। ओके, सोशल जस्टिस में एड्रेस इश्यूज ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एडवोकेटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेलरेबल एंड मैनेजुलाइज्ड ग्रुप। कल्चरल में आएगा रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव moral values and traditions of the society, influencing custom, laws and social practices. After that, religion sphere में moral teaching. Okay?
religion provide framework, okay, of moral teaching and commando as a commandant that guide followers of ethical behavior. जब हमने इनिशियल वीडियोस में जब ऑरिजिन या फिर सोर्स ऑफ वैल्यूज की बात की थी, एथिक्स की बात की थी, तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है हमारा, जो रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारी अपब्रिंगिंग पे और हमारे एथिक्स पे. ओके, स्पिरिचुअल कंडक्ट में आएगा एम्फेसिस लिविंग अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल सच एज कंपैशन, चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी. एंड कम्युनिटी एथिक्स में आएगा इन्फ्लुएंस द मोरल स्टैंडर्ड विद इन द रिलीजन communities promoting and share values. Political sphere, governance, moral influence, political leaders and public policies, promoting integrity, transparency, accountability in the government organization. Legislation, ethical consider play a role in the creation and implementation of laws, ensuring they are just and equitable. Means जो भी rules regulations बनाए जा रहे हैं, जो भी laws बनाए जा रहे हैं, वो क्या हो, fair हो, किसी भी individual से क्या करें, पक्षपात ना करें, justice provide करें. Okay, civic responsibility, being a human being, हमारी क्या responsibility है, encourage citizen to engage in ethical civic behavior such as voting, obey laws, participating in community services. Okay, इसमें क्या है, जैसे वोटिंग है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके पॉलिटिकल स्फीयर्स में आएंगे. जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, so being a individual, being a part of the society, being a good human being, you have to obey all the rules and regulations which has made by the government. Okay, normative ethics. Now come to the point, types of ethics. Ethics भी different types के होते हैं. First one is normative ethics. Normative ethics में क्या आएगा, देखिए ethics क्या है, rules and regulations, standards, rules and regulations are which you have to follow in your daily life, in your professional life. So वही है types of ethics, that is normative ethics. Normative ethics को भी हमने further 2 parts में divide किया, 3 parts में. That is first one is deontological ethics. Ethics focus on rules and duties. Actions are considered ethically if they adhere to set of rules and duties regardless to the outcome. Okay, action जो भी हम act कर रहे हैं, अगर वो within the sphere of the rules and regulations है, जो already ही define किए गए हैं, अगर आपको सोसाइटी में रहना, ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू हैव टू फॉलो दैट. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिक्स, फोकस ऑन द आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन. जो फर्स्ट वन है वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ ये इस चीज पे फोकस करिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप फॉलो कर रहे हैं. सेकंड वन इज फोकस ऑन द आउटकम ऑफ द एक्शन. An action is considered ethical if it leads a good consequences. कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप एथिकली तब कंसीडर होगा जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, गुड होंगे. ओके, यस, वर्च्यू एथिक्स focuses on the character and virtue of individual performing the action rather than on the rules or the consequences. Okay, an action is considered ethical is emanates from the virtue characters. Metaethics. Metaethics is a branch of philosophy that investigates the nature, foundation and meaning of ethical concept rather than addressing what actions are right or wrong. Okay, yes, which is focus on normative ethics में क्या होता था, सही गलत, ये एक्शन राइट है, ये एक्शन रॉन्ग है, इस पे क्या कहते हैं, डिपेंड किया था, इसके बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे. बट मेटाएथिक्स में क्या होगा, क्या चीज गलत है, क्या सही है. अब कोई एक्ट कर रहे हैं, वो गलत है या सही है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन वो आएंगे हमारे नॉर्मेटिव में. अगर आप गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन है. अगर आप ये एक्ट कर रहे हैं, ये गलत है, बट वो जो गलत है
एथिक्स में इंक्लूड होगा व्हाट डज इट मीन टू से समथिंग इज गुड और बैड। आर मोरल वैल्यूज यूनिवर्सल और कल्चरली डिपेंड। जो मोरल वैल्यूज हैं या हमारी एथिक्स है वो क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होगी, या सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर बाउंडेड है। ओके, हाउ कैन वी नो व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग? अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड मींस एप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये चीज बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एम्प्लॉयर आपको ये चीज नहीं करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज मेडिकल एथिक्स को आएंगे आपके अप्लाइड एथिक्स में। मेडिकल एथिक्स डील्स विद एथिकल इश्यूज इन मेडिकल फील्ड such as patient autonomy, confidential information on the patient and end of the life care. Okay, after that business ethics concern ethical principles in a business environment such as corporate governance. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। ओके, एनवायरमेंटल एथिक्स में स्टडी द मोरल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द एनवायरनमेंट एंड नॉन ह्यूमन कंटेंट। एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या आएगा, जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप क्या एनवायरनमेंट के लिए भी कंसर्न है। ऐसा तो नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को हार्म कर कर आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, आप पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, फ्यूल है, जैसे ऑयल है, उसका आप एक्सेस यूज कर रहे हैं या उसको वेस्टेज कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल के सपोज कीजिए आपकी कोई पॉलिथीन फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसको आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पॉलिथीन की, पॉलिथीन पॉलीबैग, ओके, पॉलीबैग जो है वो सबको पता है कि वो रिसाइकल नहीं होता। ओके, मोस्टली रिसाइकल नहीं होते, जो वन टाइम यूज है हम यूज करते हैं उनको थ्रो कर देते हैं। उसके बाद वो हार्मफुल है, वो एयर पॉल्यूशन करते हैं, वो सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो एक अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो मुझे पॉली बैग में सेल करना है, तो उसके बाद क्या मैं उसको रिसाइकल करवा रहा हूँ, ये भी क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर आ रहा है। ओके, बायो एथिक्स एड्रेस एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, ठीक है, इसमें आएगा आपका बायो एथिक्स में जेनेटिक क्लोन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी आज के टाइम में किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है, एक चिप इंसर्ट की जाती है, उस चिप में उसके माइंड की फंक्शनिंग रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा, देखिए हर चीज की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, उसके प्लस पॉइंट भी है, उसके नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, उसके चिप इंसर्ट कर दी गई, तो उसके चिप, उसके माइंड में जो जो चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी उस चिप में क्या हो जाएंगी, रिकॉर्डेड हो जाएंगी। उस साइंटिस्ट के जाने के बाद भी वो जो उसका माइंड है वो क्या करेगा, फंक्शन कर सकता है अगर हम उस चीज को किसी और में इंसर्ट कर दें। सेम चीज उसके अगर हम साइड इफेक्ट्स देखें तो अगर सपोज कीजिए वही चिप किसी ऐसे इंडिविजुअल में इंसर्ट कर दी गई जो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ जो डिस्ट्रक्टिव पीपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। Descriptive ethics involve the empirical study of people's moral beliefs and practices. This type of ethics is considered with describing how people behave and what moral standard they claim to follow. Virtue ethics focus on inherent characteristics of personal rather than specific actions. Okay, suppose कीजिए courage है, अब courage को एक एथिक्स नहीं हम इंक्लूड कर सकते कि हाँ करेज होना है, क्या हाँ ठीक है करेज है तो वो क्या है, गुड है, एक इंडिविजुअल, एक अंदर से एक इंटरनल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज वर्च्यू
ethics. After that, feminist ethics. आप जेंडर इक्वालिटी को कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं, आप फीमेल से किस तरह से बिहेव करते हैं, ओके आपके वर्क प्लेस पे अगर फीमेल हैरेसमेंट हो रही है उसके अगेंस्ट आप क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा आपका फेमिनिस्ट एथिक्स में. फेमिनिस्ट एथिक्स emphasizes the importance of gender and the ways in which traditional ethics have often undervalued, okay, human moral experiences, okay. It focuses on issues such as gender equality, okay, and the relationship between the gender equality, okay. After that, care ethics में stress the importance of interpersonal relationship and the virtue of care, empathy and compassion. ये आएगा आपका care ethics में. Okay, it often concentrates the more principle-based approach like deontology and consequencing. After that, the difference between ethics, moral, and values. Okay. Ethics is derived from the Greek word we had already discussed about this. Ethics is derived from the Greek word ethics, meaning characteristics. Okay. And where on the other side moral is derived from the Latin words more, which means convention. Values is derived from Latin word valere, which means strong, aid, vigorous. Okay. Ethics refers to the rules provided by external source. For example, ethics means code of conduct in workplace, principles, religions, and morals refer to the individual's own principles regarding right and wrong, or a person who knows the difference between right and wrong and choose right as a moral. Values are the rule by which we take the decision what is right and wrong, and values we can also say that values are the guiding principle of one's life. Ethics come from social system. Ethics जो है वो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू को हम कंसीडर करते हैं. एक्सटर्नल जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बाहर सोसाइटी में रहकर काम कर रहे हैं, वो गलत है या सही है, दैट कम्स अंडर एथिक्स. मोरल कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स. मोरल कहाँ से आते हैं, इंडिविजुअल से, इंटरनल फैक्टर्स, एंड वैल्यूज आर गवर्न्ड बाय द इंडिविजुअल. एग्जाम्पल जो हम बात करेंगे एथिक्स के, एथिक्स में हम ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, these all are the ethics. And if you are talking about moral, so do not cheat others, be loyal, always tell the truth, these all are the moral. And in ethics, love, freedom, justice, happiness, and caring, responsibilities, these all are the example of values. Now come to the point, ethics in business. Business ethics is one of the most important branch of the applied ethics. Applied ethics की जो हम बात कर रहे हैं, हमने types of ethics में पढ़ा था. Applied ethics means जहाँ पर business में जो ethics आप यूज कर रहे हैं, being an organizations, ठीक है, कौन कौन से पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करने हैं. ओके, सो बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एथिक्स आइडियाज टू बिजनेस. Business ethics refers to the moral principles and standard and code of conduct that the business are follow, or we can say that the businesses are expected scarce resources to produce in an efficient manner those goods and services which society wants and willing to pay for it. Okay, businesses में क्या हो रहा है, वो जो हमारे देखिए, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑलरेडी स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की. ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी एक्सेस में अवेलेबल नहीं है. स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की. बिजनेस क्या करता है, उनको यूज करता है, उनको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है. आफ्टर दैट वो सेल करता है उस प्रोडक्ट को
फिनिश गुड में उसको प्रोड्यूस करके और हम उसके लिए पे करते हैं। तो क्या है, जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। ओके, तो सोसाइटी के लिए भी उसके कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की। बिजनेस मस्ट बैलेंस देयर डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अगेंस्ट द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर। बिजनेस को अपनी जो लिमिट एक होता है ना प्रॉफिट अर्न करने की, ये नहीं है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना है, मुझे जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे जो सोसाइटी में लोग हैं उनको कंसीडर नहीं करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, आपको अपने प्रॉफिट के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, ओके, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी आपको साथ में लेकर चलना है। ओके, सिर्फ आपका मेन फोकस आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। The significant issues in business ethics include ethical engagement of enterprises in relation to its stakeholder in particular and natural environmental in general. Ethics is essential for several reasons. Okay? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए एथिकल या एथिक्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ एथिक्स को या कोड ऑफ कंडक्ट उसने बनाए हैं एथिक्स को फॉलो करने के लिए, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट, एनहांस रेपुटेशन। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकली काम कर रही है तो कस्टमर के बीच में, सोसाइटी के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रस्ट क्रिएट होगा। एंड सेकंड वन इज बिल्डिंग रेपुटेशन। ऑब्वियसली अगर ट्रस्ट इंक्रीज हो गया, लॉयल्टी इंक्रीज हो गई, तो रेपुटेशन उस कंपनी की साइड बाय साइड इंक्रीज, साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद लीगल कंप्लायंसेस, अवॉइडिंग legal compliances if the organization following the code of ethics, so वो help करती है avoiding any legal issues. Ethical behavior help business comply with law and regulations, reducing risk of legal penalties, fine and lawsuits. ठीक है, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज कीजिए वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग आवर्स है, या जो मिनिमम वेजेस हैं किसी भी वर्कर को मिलने चाहिए, वो प्रीफिक्स्ड है कि हाँ ये मिनिमम वेजेस आपके वर्कर को मिलने ही चाहिए। बट अगर आप अपने वर्कर को वो मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, 8 आवर्स उनकी वर्किंग है, आप 8 आवर्स उनसे काम ले रहे हैं, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द मिनिमम वेजेस व्हिच इज प्रीफिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। उसके बाद regulatory adherence. Ethical companies are more likely to adhere in industry standard and regulations, ensuring smooth operations and avoiding conflict with regulatory bodies. Employee satisfaction and retention. Obviously, अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकली काम हो रहा है तो वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। वर्क प्लेस का ऑरा जब पॉजिटिव होगा तो मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज और आपका जो आउटपुट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड एथिकल वर्क एनवायरनमेंट प्रमोट फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी, लीडिंग टू हायर एम्प्लॉयर मोरल और जॉब satisfaction. Next is talent retention. Companies with strong ethical standards are more likely to attract and retain talented employees who value integrity and ethical behavior. Customer loyalty. First one is mitigating risk. Ethical behavior helps identify and mitigate risk related to fraud, corruptions and unethical practices, safeguarding the company assets and reputation. Sorry. Yes, customer loyalty. First one is customer
Ethical business practices build customer confidence and loyalty. As customer prefer to associate with a company they perceive as honest and responsible. Next is long-term relationship. Customer are looking for long-term relationship with that company which works in under the code of ethics. Okay? Ethical treatment of customer leads to long-term relationship and repeat business, which is vital for sustained profiting. After that, risk management. First one is mitigating risk and crisis prevention. Okay. Ethical behavior helps identify and mitigate risk related to fraud, corruption and unethical practices, safeguarding the company's assets and reputation. Crisis prevention. Companies that prioritize ethics are better equipped to prevent and manage crises that can arise from unethical behavior. Obviously, अगर कोई कंपनी unethically काम कर रही है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं अनएथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट, कि अगर एथिकल बिहेवियर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम ये एक्शन लेंगे। तो अगर आप एथिकली काम कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस में जो लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपने जो भी बिजनेस सेट किया वो एथिकली काम कर रहा है, एथिक्स उसमें इंक्लूड है, तो जो क्राइसिस है वो प्रिवेंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। Sustainable growth, long-term success. Ethical businesses are more likely to achieve sustained social responsibility initiatives, contributing for society well-being and improving the company public image. जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी की इमेज है, जो कंपनी की रेपुटेशन है, वो क्या होगी? साइमल्टेनियसली इंक्रीज ऑल द वर्क। सो जो कस्टमर है, जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपसे क्या करेंगे? रिलेशन, उनके बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। एथिकली प्रैक्टिसेस प्रमोट पॉजिटिव एंगेजमेंट विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एंड द कम्युनिटी, fostering a cooperative and supportive business environment. Investor confidence. Obviously, investor का जो confidence है वो increase होगा. Investors are more likely to support companies with strong ethical standards as they perceived as lower risk. अगर आप ethically काम कर रहे हैं तो जो unethically काम करने, अगर कोई कंपनी बिजनेस अनएथिकली काम कर रहा है उसको क्या होगा? एक डर रहेगा कि गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है मेरे अगेंस्ट क्योंकि मैं अनएथिकली काम कर रहा हूँ। और जो इन्वेस्टर है उसमें उनको भी क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस क्या आएगा? उनका खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे? डर डर के उसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉफिट तो उनको लगेगा कि हाँ ज़्यादा है, बट वो डर डर के इन्वेस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो सारा का सारा काम क्या कर रहा है? एथिकली कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी है उसके काम में, ठीक है, जो भी वो बिजनेस कर रहा है ट्रांसपेरेंसी है, तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है उस पर इंक्रीज होगा, कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होगी और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड एथिकल environment encourage openness, transparency and collaboration which can be foster innovation and creative problem solving. अगर आप देखिए अनएथिकली काम कर रहे हैं तो आप डर डर के काम करेंगे क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि कहीं किसी दूसरे पर्सन को, कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है उनको ना पता चले कि मैं अनएथिकली काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को ना पता चल रहा है मैं अनएथिकली काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। बट सेम चीज अगर आप एथिकली काम कर रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट है आप पर, आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट है आप पर, तो आपका ध्यान अपने आप को, आपकी जो क्राइसिस है, जो आपका रिस्क फैक्टर है वो कम होगा। आप अपने माइंड को इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें रिसर्च में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट एथिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Companies committed to ethics are more likely to develop the product and services
that are safe, reliable and benefitable for the society. जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को कंसीडर कर काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कस्टमर के लिए भी क्या हो, बेनिफिट हो, उसका सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो एंड रिलायबल हो, सेफ हो. कल्चरल इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट कल्चर, ethical standard shape the corporate culture, guiding employees behavior and decision making process. corporate culture में क्या होगा, अगर आपका बिजनेस एथिकली काम कर रहा है, ठीक है, तो जो आपके एम्प्लॉयज होंगे, जो आपके टीम मेंबर होंगे, वो भी सारे के सारे डिसीजंस किस तरह से लेंगे, एथिकली लेंगे. ठीक है, वो ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा हम 2 नंबर का काम किस तरह से करें, हम कौन से ट्रिक यूज करें, क्योंकि वो कहाँ पे आएंगे, सब अनएथिकल जो काम कर रहे हैं. बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एथिकली काम कर रहा है तो आपके टीम मेंबर भी जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी, एथिकली होगी. जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एथिक्स होगा. ओके, स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर कैन एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी. अगर ऑब्वियसली अगर आप एथिकली प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका जो मिशन है, जो विजन है, वो क्या होगा, अचीव होगा इफेक्टिवली, क्योंकि लोग क्या है, सारे के सारे एथिकली काम कर रहे हैं. जो आपकी टीम मेंबर में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग. एथिकल लीडरशिप सेट द टोन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एथिकल लीडर, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, कोई आपने नया ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन किया, तो वहां पर फर्स्ट वन, या तो आपकी वैल्यूज क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपको सिर्फ सही का साथ देना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, बट आप क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जैसा मैनेजर होगा उससे हम उस तरह से डील करेंगे. तो जिस तरह का मैनेजर होगा, सपोज कीजिए आपका मैनेजर जो है वो अनएथिकल जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, धीरे धीरे अनएथिकली काम करना शुरू कर देंगे. सेम चीज ऑन द अदर हैंड, अगर जो लीडर है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, एथिक्स को फॉलो कर रहा है, तो बीइंग अ एम्प्लॉय आप भी क्या करेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे. एक लीडरशिप का जो मेन रोल होता है ना, अगर लीडरशिप जो है एथिकली काम कर रहा है, तो उसके जो टीम मेंबर है ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एथिकली काम करेंगे. रोल मॉडल वो बन जाएगा अपने टीम मेंबर्स की. Now, code of ethics. There is a difference between code of conduct and code of ethics. Okay, so let's discuss the difference between the code of conduct and the code of ethics. First, let's introduction of code of ethics. हम code of ethics की बात कर रहे हैं कि ethics follow करना चाहिए, ठीक है. अगर ethics follow नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. तो code of ethics क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. Code of ethics and code of conducts are both commonly terms used in the business world and share many of the same characteristics. Okay? Mostly क्या है, same है, but एक difference है, minor सा difference है. Okay? They may also be used interchangeably in some organizations, which can often confuse when determining what the two mean and how they differ from one another. कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आएगा, आपका इंटीग्रिटी आएगा. कोड ऑफ एथिक्स में सॉरी, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ग्रोथ. कोड ऑफ definition of code of ethics. A code of ethics provide an organization with a set of principles that describe behavior. Codes typically include issues like confidentiality, discrimination, conflict of interest, harassment, and whistleblowing. Now come to the point, code of conduct. A code of conduct is written set of rules, standards that employee must obey. कोड ऑफ एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोई रिटन फॉर्म में नहीं है. ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो फॉलो करना है या नहीं करना है. सपोज कीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप विस्लिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो गलत
प्रिंसिपल होगा कि नहीं आपको सिंसियर होकर काम करना है, ठीक है। हरासमेंट करना एक गलत है, विस्लिंग करना वो भी गलत है, वो किस में आएगा, आपका कोड ऑफ एथिक्स में आएगा। बट कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रिटर्न में होता है, रूल्स रेगुलेशंस है। बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में होता है, वो मैंडेटरी होता है आपको फॉलो करना, ओके। अ कोड ऑफ कंडक्ट इज रिटर्न set of rules and standards that every employee must obey. It tells people what to do as well as what not to do in workplace. Code of conduct किसमें implement होता है, workplace में, कि workplace में हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। For example, most code of conducts prohibit sexual harassment and discrimination. हम जब बात करेंगे, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में आल्सो कंटेन प्रोविजंस फॉर रिस्पेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस और कंपनीज प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन इज the code of conduct is general. जो code of conduct है वो क्या है, very general है, while the code of ethics is more in depth. General rules and regulations जो बता दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये चीजें हैं, ये ड्रेस कोड है आपको फॉलो करना है, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपको फॉलो करना है, ये हायरार्की है वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, ये आपके टाइमिंग आवर्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं, तो वो आएगा आपका कोड ऑफ कंडक्ट में। कोड ऑफ एथिक्स इन डेप्थ में होते हैं एज कंपैरेटिव टू कोड ऑफ कंडक्ट। अ कोड ऑफ कंडक्ट इज यूजुअली ओनली अप्लाइज टू दोस विद इन द कंपनी, while a code of ethics is usually required for those working on the behalf of the company. कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ यूज होते हैं, कंपनी के अंदर। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा, सेकंड वन नहीं करेगा। कोड ऑफ एथिक्स क्या हो गए, जब आप किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, सपोज कीजिए आप फ्रीलांसर हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या होंगे, यूज होंगे। अ कोड ऑफ कंडक्ट माइट dictate how employees should dress, while a code of ethics typically address ethical decisions made within the company. Okay? कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आएगा, किसी भी क्या आपका ड्रेस कोड रहेगा, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, वर्किंग कंडीशंस कैसे रहेंगी, आप क्या आएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा। ओके, और कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस में कि कोई टीम मेंबर आपका आ रहा है आपके पास, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है, वो कह रहा है कि सर मैं मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं, मैं 10 to 6 जॉब नहीं कर सकता और बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बट मुझे 2 to 8 का जो स्लॉट है आपके यहाँ पर उसका मुझे दे दीजिए, मैं उस ड्यूरेशन पे काम करूँगा। तो वहाँ पर जो डिसीजंस लेना है मैनेजर को, वो किसके बेसिस पे लेना है, कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे। The code of conduct will be limited to one profession or industry, but a code of ethics may apply across the different organization or industry. Code of conduct किसी भी particular कंपनी पे इम्प्लीमेंट होता है। हर कंपनीज के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने कहा था ड्रेस है, एक कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया, ठीक है, वर्किंग आवर्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया, जो भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया। हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, पर जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो वो क्या है, कॉमन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सॉरी एथिक्स है, वो क्या है, कॉमन रहेंगे। कोड ऑफ एथिक्स आर टिपिकली नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, but code of ethics are often subject to legal penalties. Code of conduct अगर आपने फॉलो नहीं किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, वो क्या कर सकती है, सिर्फ आपको टर्मिनेट कर सकती है, बट आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती कोड ऑफ कंडक्ट में। बट ऑन द अदर हैंड जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके लिए आपकी लीगल पनिशमेंट
पनिशमेंट, लीगली आपको पनिश किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट यूजुअली एड्रेस स्पेसिफिक सिचुएशन while code of ethics are broader in shape. Many companies do not have code of conduct. ऐसा नहीं है कि हर कंपनीज में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं वहाँ के ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, बट जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो हर कंपनी को क्या करना है, फॉलो करना है। कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट रखना, बट कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट आर रिटन इन मैनेजमेंट while code of ethics are must approved by the top management. Code of conduct, सपोज कीजिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है, बट हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो टॉप मैनेजमेंट उसमें क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। Violation of code of conduct are punishable for firing or other means. We had already discussed that कि अगर आपने क्या किया, वायलेट किया है जो कोड ऑफ कंडक्ट को, तो आपको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको फायर किया जा सकता है। While violation of code of ethics can result in fine and jail. अगर आपने किसी को जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको क्या किया, ब्लॉक किया है, उसको तोड़ा है, तो आपको फाइन हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। The ultimate goal behind the code of conduct is to protect employer from liability, while the goal behind code of ethics is to protect customer from unethical behavior. So, code of conduct are intended to protect the interest of the organization. कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाइल कोड ऑफ द एथिक्स किस लिए इंप्लीमेंट करती है, मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी, टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। There is no set punishment for breaking a code of conduct. However, violating a code of ethics can lead to criminal charges. Depending on the severity of violation, punishment of violation of code of ethics range from fine to jail. Okay? Any organization without either code of conduct or code of ethics are in the risk of facing lawsuit for the illegal activity. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जिसने सेटअप किया है, अगर वो ना तो उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं अपने, ठीक है, और उसके बाद वो जो कोड ऑफ हमने डिस्कस किया था कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मैंडेटरी नहीं है, बट कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। बट कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, कोई बिजनेस ऐसा है जो कोड ऑफ कंडक्ट भी उसने अपने सेट नहीं किए, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोड ऑफ एथिक्स बना रखे उनको भी वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज के क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि हाँ कोई इलीगल अगर एक्टिविटीज कर रहा है उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि अनएथिकल वो काम कर रहा है। For companies that already have a code of conduct, it is important to ensure that all the hires sign this document. अगर किसी कंपनी ने कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो जब भी आप नए एम्प्लॉयज हायर करें तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उस टाइम आप उनसे साइन करा लें कि दैट दे आर ओबेइंग दैट कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द organization. To best comply with their policy, manager need to keep update data copies of both the company code of conduct and code of ethics hand during meetings. Means इसमें क्या बोला गया कि ये एक पॉजिटिव है, बेनिफिट है कि सपोज कीजिए कोई मीटिंग हुई है, उस टाइम आप कोड ऑफ कंडक्ट और जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या करो, हैंडी रखो। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस है और तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में होंगे, तो वो हैंडी रखो। और कोई ऐसा डिसीजंस लेना है जिसमें आपको क्या कंफ्यूजन है कि क्या डिसीजन लिया जाए, तो उस टाइम आप क्या करो, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एथिक्स है, उनको रेफर करो, उनके बेसिस पे क्या लो आप डिसीजंस लो। So this is the conclusion. The key difference between the code of ethics and code of conduct is that the
code of ethics is applied to code of ethics is applied to employees as well as non-employee, while the code of conduct is applied only the employees of the organizations. कोड ऑफ एथिक्स जो आपके एम्प्लॉयज है उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा, जो आपके एम्प्लॉयज नहीं है उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा, बट कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ आपके एम्प्लॉयज पे इम्प्लीमेंट होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू. If you are having any query, then you can write me on renu.management@tmu.ac.